Good morning, students. Welcome to another online political science class. And today again we are moving towards the same chapter, that is chapter 3, US hegemony in world politics. So we have covered up many areas of this chapter, US hegemonizing power, how we have seen all these things. Okay, now today we are moving towards another area, that is a separate area, and that is Indo-US relationship. Okay, so that is India's relationship with US. So in this area we will see how India and US are cooperating with each other. Okay, right from Cold War time, India is not a friend of US. US did not like India. So from that time to till today, we have seen how did Indo and US relationship has been changed. Okay, from time to time. So let's start. So I have made a column here. See. Now, India's condition. Now, what is the India's condition in the international arena regarding US? Okay, India is not a friend of US, but is a friend of USSR. Right from Cold War time, USSR is a good friend of India. Not because India is a country, developing country, and because USSR is a superpower country. Okay, not for that one. Because the socialism policy that in the USSR has adopted, that was very much liked by the Indian people. Okay, Indian framers, Indian policymakers, they have very much liked these things, and for that reasons, governmental policy system, all these things were very much attracted to India, and for that reasons, they were a good friend of USSR, and USSR is not that much pressurizing India to go with the policy of USSR's Cold War tactics and all these things. Okay, so India is a good friend of USSR, but after 1991, when USSR has been disintegrated, that time the whole scenario in the world arena has changed. Even it has changed in the economic development, political development of India also. Okay, so we can see after 1991, India liberalized its economy, needed strong economic partner, US, like US. 1991, India has liberalized its policy. India has opened up its area. They have invited the different countries to come to their country and to set up their multinational companies. Okay, for that reasons, even US is attractive. US is being attracted to India also, and India has also needed for some time or the other. India is not a good friend of US, but now as time has changed and the whole international atmosphere has changed now, so India also needed a good friend. उनको भी एक बहुत अच्छा strong economic partner चाहिए, जैसे कि US. ठीक है? Now next to US, during Cold War, US condition, during Cold War, US did not like India. US did not like India for solid two reasons are there. One is because India has not entered into NATO alliance. Next one, instead India went up and made up something called NAM, non-aligned movement. So that was not liked by US. Okay, but after 1991, US also needed strong country like India for economic partnership, for economic joint venture or something. Okay, so 1991, even economically or for political development, for closeness, India is searching some country like US, and even US is also searching a country like India. So both became closer after 1991. Okay, so they both became closer and they both have start up their new journey towards an international world political system. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि फैक्टर्स, दो फैक्टर्स यहाँ पे किताब में लिखा है. देयर आर टू फैक्टर्स दैट आर वर्किंग इनटू द इंडो-यूएस रिलेशनशिप. वन इज technological dimension, one is Indo-US diaspora. Now, technological dimension means whatever that is related to technology, technological setup, software companies, export import between both countries, ये सब कुछ चला और ये factors उनको influence किया है उन्होंने, हाँ, दोनों country को एक साथ आने में. और एक है इंडो-यूएस डायस्पोरा. अभी डायस्पोरा मतलब एक चीज, जैसे कि होता है ना, डिफरेंट कंट्री में लोग जाके बस जाते हैं एक कंट्री से. जैसे कि इंडिया से भी बहुत सारे कंट्री दे वेंट अप टू अमेरिका,
दे बिकेम NRI वहाँ पे जाके, और वहाँ पे बस गए, वहाँ पे जाके बसने के बाद में दे हैव स्टार्टेड वर्किंग देयर, ठीक है। तो इंडो यूएस डायस्पोरा और एक एरिया, एक फैक्टर, ठीक है। इसमें हमने देखा 4 एरिया जो डील करता है इनटू द इंडो यूएस रिलेशनशिप। तो देखते हैं 65% इंडियाज एक्सपोर्ट अब्सॉर्ब बाय यूएस। तो 65% जो यूएस एब्जॉर्ब करता है इंडियन कंपनी, इंडियन जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है ना, उसको मतलब यहाँ से लेके जाते हैं वो लोग, बहुत सारे चीज को एक्सपोर्ट करके लेके, इंडिया एक्सपोर्ट्स दिस थिंग्स टू अमेरिका, ठीक है। उसमें जैसे कि है कंप्यूटर का जो है सेक्टर, ये इसमें है, फिर इसका एरोप्लेन है, और इस तरह से बहुत सारा जो मटेरियल है वो इंडिया से खरीदता है अमेरिका। तो उसका परसेंटेज कितना है? 65, बहुत ज्यादा ही है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट 35% बोइंग टेक्निकल स्टाफ आर इंडियंस। अभी बोइंग क्या है? बोइंग मतलब है जो एरोनॉटिक्स कंपनी से डील करता है, एरोप्लेन बनाता है, रॉकेट्स बनाता है, स्पेस क्राफ्ट बनाता है। तो इन अमेरिका में ये बहुत विशाल बड़ा कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसका जो 35% जो वहाँ पे लोग जो है वो किसका से आते हैं, किस जगह से आते हैं? दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका स्टाफ जो है इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। ना व्हाट इज सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली जैसे कि अमेरिका में एक जगह है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, वहाँ पे एक जगह है, एरिया, उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, जहाँ पे बहुत सारा कंपनी से, बहुत सारा रेसिडेंशियल भी एरिया है जहाँ पे इंडियंस लोग रहते हैं, और बहुत सारा कंपनी है जो काम करता है वहाँ पे, ठीक है। और उस कंपनी में मोर देन 3 लाख पीपुल दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर और एक देखो 15% हाई टेक आर बाय इंडियंस। 15% टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में और जो साथ देते हैं दैट आर बाय इंडियन अमेरिकन, दोनों का जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो ये है हाई स्टार्टअप। तो ये जो है सेक्टर, दिस रिफ्लेक्ट्स द इंडो यूएस रिलेशनशिप, जो भी यहाँ पे है दिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो दिस थिंग्स। अभी इस जगह से हम लोग और एक जगह पे जाते हैं और देखते हैं हाउ डज इट इज वर्किंग। इट इज वर्किंग ऑन द होल एरिया ऑफ इंडो यूएस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि इन 2008, ओके, nuclear deal. A nuclear deal was signed by India and US. इंडिया और यूएस के अंदर में एक साइन हुआ डील न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेके बहुत काफी दिनों से बहुत डिस्कशन हो रहा था, एंड इंडिया वाज नॉट साइनिंग द एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये बहुत आगे का स्टोरी है, बट आफ्टर मेनी डिस्कशन, मेनी टर्म्स एंड कंडीशन, 2008 में जाके इट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है। ये एक बहुत बुरी बात है, बट एंड आफ्टर दैट थिंग ऑल्सो देखा गया कि बहुत सारे जो इंडियंस जो मिनिस्टर्स है, डिफेंस मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स है, फिर हमारे इंडियन पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, दे आर विजिटिंग अमेरिका। इवन फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो मेनी प्रेसिडेंट्स दे केम टू इंडिया ऑल्सो, ओके। रिसेंटली जैसे कि बराक ओबामा के टाइम में बराक ओबामा केम, ही हैज विजिटेड इंडिया। Now also President Donald Trump, he has recently visited India, and he is also cooperating very much with the Indian government and India, the country India, okay. So देखा गया कि रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडो यूएस रिलेशनशिप वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि US is a sole superpower country और इंडिया इज ए हाईली इकोनॉमिक, रेपिडली इकोनॉमिक पावर जो इमर्ज होके जा रहा है, ओके, बहुत डेवलप्ड हो रहा है इंडिया। तो दोनों का जो संबंध है वो बहुत काफी दोस्तियाना में है, इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल हो रहे हैं आस्ते आस्ते। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक क्रिटिसिज्म पॉइंट आता है यहाँ पे, दिस पीपुल, इसको बोलते हैं एनालिस्ट, ओके। एनालिस्ट जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग सोचते हैं कुछ, हाँ, किसी चीज के बारे में लेके सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने 3 चीज निकाला है। तो 3 चीज में क्या है, ठीक है। एक है एलोफनेस फ्रॉम यूएस। एलोफनेस फ्रॉम यूएस मतलब यूएस के साथ नहीं जाना है, यूएस के साथ नहीं जाना है, और इंडिया खुद ब खुद, और इट कैन कंट्रीब्यूट इटसेल्फ एंड इट कैन बिकम ए गुड एंड हाईली डेवलप्ड नेशनल पावर इन द
वर्ल्ड, ठीक है, वो खुद बे खुद अपना बना सकता है वो, एंड यूएस का साथ ना लेके, यूएस का क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट ना लेके भी वो काम कर सकता है. सो सम पीपल दे वांटेड एलोफनेस, सेपरेटनेस फ्रॉम यूएस, ठीक है. फिर एक है जहाँ पे होता है कन्वर्जेंस ऑफ यूएस इंडिया रिलेशन. कन्वर्जेंस मतलब जहाँ पे और लोगों ने बोला है कि इंडो एंड यूएस रिलेशनशिप को और गहरा होना चाहिए. दे हैव टू कंट्रीब्यूट देमसेल्व्स इनटू द इंटरनेशनल एरिना, और उनको अपने बहुत और भी क्लोज आना चाहिए. ओके, टाइम टू टाइम उनको और भी क्लोज आना चाहिए, एंड दे कैन कम क्लोज एंड दे कैन बिकम मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है, ये बोला. और फिर और एक ग्रुप उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बोला उन्होंने चैलेंज फ्रॉम ए ग्रुप टू यूएस. एक ग्रुप बनेगा जहाँ पे इंडिया भी होगा एक ग्रुप में, और ये जो ग्रुप है ये चैलेंज करेगा यूएस को, अपोज करेगा यूएस को, एंड दिस ग्रुप दे विल वर्क टुगेदर एंड दे वोंट लाइक और दे वोंट सपोर्ट एनीथिंग अबाउट द यूएस, ठीक है. तो ये 3 एनालिसिस जो किया है इंडियन एक्सपर्ट्स ने कि ये तीनों हो सकता है, तीनों में से भी कुछ भी हो सकता है. विच वन इज मतलब फेमिलियर और रेलिवेंट टू द इंटरनेशनल एरिना, या फिर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज अबाउट इंडो यूएस रिलेशनशिप. ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आते हैं क्लोजिंग चैप्टर. ये क्लोजिंग पार्ट है ऑफ दिस यूएस हेजिमोनी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर very nicely. Okay, thank you students.